I will start sharp at 8:30, हाँ बच्चों, so please join fast. Okay, so we will start now. In the morning, we have solved 2 questions. Now, question number 3. Okay, please copy down the question. I hope you all are sitting with the logbooks and your notebook and pen, everything. Sum number 3. See in your textbook, at the end, they have given only 3 numericals. But इसके ऊपर बहुत सारे numericals आते हैं. So that is why I am taking your solved examples also, so that you can solve it with the logbooks. ठीक है? Write on the question. Calculate H3O plus ion. Calculate H3O plus ion in. Calculate H3O plus ion in 0.1 mole per dm cube. 0.1 mole per dm cube solution of acetic acid. 0.1 mole per dm cube solution of acetic acid. What you have to calculate? Concentration of H3O plus. Concentration कितना दिया हुआ है? 0.1 mole per dm cube. ठीक है? And they have given Ka is 1.8 into 10 raised to minus 5. Okay? This is my question. What we have to calculate over here? Concentration of hydronium ion. Okay. So first of all, I will write down CH3COOH, that is acetic acid, on hydrolysis gives you acetate ions plus hydronium ion. Correct? H3O plus. अभी आपको याद रहेगा, if this is alpha, this is alpha, this is 1 minus alpha. If it is C, this is C, this is also C. तो in short, H3O plus का formula क्या है? Alpha into C. This part you understood. I am interested in calculating H3O plus. बराबर? So what we have to do is concentration of H3O plus can be written as alpha into C. अब मुझे concentration पता है. Do I know alpha? अल्फा नहीं पता है ना,
So what is the formula for alpha? Alpha square is equals to Ka by C. मतलब alpha is equals to square root of Ka by C. ये समझा सबको? Have you understood this step? See, we have to calculate here concentration of hydronium ion. This is the concentration of solution. ठीक है? Ka is given. तो अभी हम लोग को क्या पता कि हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहता है? तो इट विल बी अल्फा इंटू सी. करेक्ट? सो अभी इसके लिए मुझे अल्फा पता नहीं है, सो आई विल कैलकुलेट फर्स्ट अल्फा, दैट इज Ka बाय सी स्क्वायर रूट. बराबर? चलो अभी Ka लिखेंगे. Ka का वैल्यू कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 1/8 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 0.1. ये स्टेप सबको समझा? पहले इतना बोलो. इज इट क्लियर व्हाट वी आर डूइंग? हेलो? यस मैम. हाँ, ओके. ठीक है. चलो अभी व्हाट आई विल डू नाउ, 1.8 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय, इसको एक पॉइंट शिफ्ट कर दो, सो 1 इंटू 10⁻⁻1. अभी वापस से ऊपर जाएंगे, इट इज 1.8 इंटू 10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +1, मतलब 10⁻⁻4. सो आई विल राइट डाउन स्क्वायर रूट ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁻2. इतना क्लियर? Now we have to take out the log. Log कैसे लेंगे? स्क्वायर रूट मतलब हाफ, log to the base 10, 1.8 into 10⁻⁻2, हाफ इंटू, अभी सुबह में ही निकाला था याद है, log of 18. सेम ही रहेगा ना, खाली कैरेक्टरिस्टिक चेंज रहेगा. तो इट इज 0 पॉइंट कितना था? हाउ मच वाज इट? 18 में 0 का log देखो. व्हाट इज द log of 18? 2553. ओके, 2553 इंटू 10⁻⁻2. ठीक है. अभी इसको डिवाइड करो. 2 1 जा 0.2, 1 जा 2, 2 जा, फिर हो जाएगा 2 7 जा, फिर हो जाएगा 2 6 जा, और फिर 5 जा. ठीक है. मतलब मेरा आंसर क्या आया? 0.12765 into 10⁻⁻2. This part is clear. After this I have to take out the anti-log. Anti-log of 0.12765 इंटू 10⁻⁻2. चलो एंटीलॉग देखो. 12 में 76 को देखो. 12 में 76. 1342. वेरी गुड. 1342. बस 0 0 +1 मतलब इधर पॉइंट आएगा, इंटू 10⁻⁻2. ये किसका आंसर मिला मुझे? दिस इज माय अल्फा. I need concentration of H plus ion, hydronium ion. So concentration of hydronium ion is equals to alpha into C. What is alpha? 1.342 into 10⁻⁻2. और concentration कितना था? 0.1. मतलब 1.342 into 10⁻⁻2 into 10⁻⁻1. Is it? एक शिफ्ट कर देंगे ना, -1. तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा? 1.342 इंटू 10⁻⁻3 आ गया आंसर. यूनिट क्या रहेगा? मोल पर डीएम क्यूब. दिस इज योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन. आया समझ में सबको अच्छे से? इज इट क्लियर? हेलो? यस मैम. सबको समझा? अल्फा इंटू सी खाली मल्टीप्लाई करके इंटू 10⁻³ हो जाएगा. ठीक है. दिस इज योर अल्फा. लिख लो. हो गया तो डन बोलो, आगे का सम देती हूँ, अदरवाइज राइट इट. आर यू राइटिंग और यू आर डन? एक मिनट, मेरा बहुत हिल रहा है स्टैंड, एक सेकेंड. हैव यू ऑल डन? ओके ओके, राइट इट एंड वंस यू आर डन जस्ट लेट मी नो. ऐसे पकड़ती हूँ. if you are done just write on done in the chat box.
किसी को नहीं समझा तो प्लीज आस्क. हाँ, फील फ्री टू आस्क. You can unmute yourself and ask the question. Ma'am, can you repeat the last three steps? Which one? This one? Yes, See, ma'am. concentration of H3 plus is alpha into C. What is the value for alpha? 1.342 into 10 raised to minus 2, and concentration was 0.1. So I've just shifted this point here. It will become 10 raised to minus 1. तो आंसर कितने में आ जाएगा? 10 raised to minus 3. बस. Okay, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Welcome. Welcome. प्लीज राइट इट. हाँ बच्चों, लॉग बुक लेके बैठो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो तुम लोग को आएगा ही नहीं कभी सॉल्व करने के लिए कुछ. आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है. हाँ बोलो ना. मैम, बोलो. सिद्धेश केदार इज नॉट एबल टू जॉइन. कौन नहीं ज्वाइन हो पा रहा है? सिद्धेश केदार इज नॉट एबल. ओ सिद्धेश केदार. व्हाई बट बच्चा? केदार मैम, उसको बोलो वापस से लिंक ज्वाइन लीव करके वापस से ज्वाइन करने को बोलो. शायद कुछ नेटवर्क इशू हुआ रहेगा. आज सब जगह बहुत है नेटवर्क इशू. मेरे इसके पहले के 2 लेक्चर्स कैंसिल हुए ड्यू टू नेटवर्क इशू. बच्चों को नेटवर्क ही नहीं था. हो गया बच्चों? डन. Finished? Let me know if you have any question, any doubts. Okay, I think most of the people have completed. Should I proceed towards the next question? Okay, चलो बोलो everybody. क्या हो गया? सब लोग रिप्लाई नहीं कर रहे आज. क्या हुआ? आज मूड में नहीं लग रहे हो तुम लोग. What happened? हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अभी. Now next question. Write down. Calculate pH. Calculate pH and pOH. Calculate pH and pOH of 0.01 molar HCl solution. Calculate pH and pOH of 0.01 molar HCl solution. ठीक है. अभी देखो HCl दिया हुआ है तो I am going to calculate pH first or pOH first. If it is HCl, एसिड है ना, तो क्या कैलकुलेट करेंगे? हेलो, क्या हो गया? पब्लिक आज एकदम शांत है. What happened? Okay, we are going to calculate here pH. So pH is equals to negative log to the base 10 concentration of H plus ions. बराबर. So what I will write down, negative log to the base 10 concentration कितना दिया हुआ है? 0.01. अभी देखो हाँ, negative log to the base 10 1 into 10 raised to minus 2. यहाँ तक सबको समझा? अभी मैंने क्या बताया था? log of 10 raised to minus 2 कितना होता है? -2. और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. मतलब मेरा pH कितना आया?
2 ये स्टेप समझा. If I will hide this minus, log of 10 raised to minus 2 is minus 2. और एक माइनस यहाँ पे भी था तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस तो हो गया pH. ठीक है. हाउ विल यू कैलकुलेट pOH? कल ही सिखाया था. pH plus pOH is equals to 14. So 2 plus pOH is equals to 14. Therefore pOH is equals to 12. आ गया समझ में? सम एकदम सिंपल था. देखो 1 मार्क्स के लिए पूछेंगे आपको सिर्फ ये, only for 1 marks. Calculate pH and pOH of this solution. Clear? Is it very simple? Okay. What about others? नहीं समझेगा तो प्लीज पूछो. ओके ठीक है. ऐसे रिप्लाई करो बच्चों तो मुझे समझेगा, नहीं तो लगेगा कि मैं अकेले ही बोल रही हूँ. ठीक है. चलो लिख लो फटाफट से. Once you are done, let me know. I will proceed for the next sum. आज हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे. 1 घंटा ही है ना अपने पास, so we will solve numericals. Okay, most of the people have completed. Okay, next question पे जाए बच्चों. Okay, write down next question. pH of solution is, what is given now? pH of solution is 3.12. यहाँ से सबसे important part शुरू होता है log का. pH of solution is 3.12. Calculate the concentration of H3O plus ions. Calculate the concentration of H3O plus ions. अभी देखो, pH is equals to negative log 2 the base 10 concentration of hydronium ion. pH दिया हुआ है 3.12. that is equals to negative log 2 the base 10 concentration of hydronium ion. इतना सबको समझा? ठीक है. अब मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, therefore. हाँ अब देखो, हाँ अभी कैसे लिखेंगे इसको, पहले अच्छे से ये करती हूँ, अरेंज करती हूँ. नेगेटिव लॉग 2 the base 10 H3O plus is equals to 3.12. अब ये नेगेटिव साइन को इधर पे लेके आओ तो ये क्या बन जाएगा, log to the base 10 H3O plus is equals to minus 3.12. यहाँ तक समझा? ठीक है. अब मुझे क्या करना है, I want to remove this log. So what I will do, I will take anti-log on both sides. अब जब anti-log लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. Concentration of H3 plus is equals to anti-log of minus 3.12. यहाँ तक किसको डाउट है पहले इतना पूछो. Any questions till now? What I did, pH की जगह पर pH रखा, दिस इज द फॉर्मूला. सिर्फ इसको रीअरेंज किया, फिर नेगेटिव साइन को इधर पे लेके आ गए, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड्स. यहाँ से लॉग निकल गया, यहाँ पर एंटी लॉग आ गया. एनी क्वेश्चन इन दिस टिल दिस पार्ट? एनी क्वेश्चंस? मिस डाउट. हाँ बोलो. मिस वो pH हमारा 3.12 है ना? करेक्ट. हाँ मिस, तो फिर यहाँ पर हम लोग ने मल्टीप्लाई कैसे किया, मतलब pH इक्वल टू 3.12 इनटू H3O plus ions. किधर मल्टीप्लाई किया बेटा? इक्वल टू लिखा है, ये क्या इक्वल टू है? मिस ऊपर, मिस सबसे पहला. कहाँ मल्टीप्लाई किया है? मिस ये मल्टीप्लाई नहीं किया है. ये
हाँ मिस वो मुझे लगा मल्टीप्लाई। नहीं नहीं नहीं, मल्टीप्लाई नहीं है। मैंने क्या लिखा, पीएच इज दिस, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन, से क्वेश्चन का था, यहाँ तक क्वेश्चन है, अच्छा ये अच्छा फॉर्मूला है, मिस। ठीक है। सो पीएच इज हाँ इक्वल्स टू मिस ओके। नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 दिस, ये समझा। पीएच के नीचे पीएच लिखा और ये वैसे का हाँ वैसे मिस। लिखा। नाउ जस्ट रीअरेंज एंड ट्रांसफर द साइन ओवर हियर। अभी हम लोगों ने क्या लिखा, आई डोंट वांट दिस लॉग ना, मुझे सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयंस चाहिए। सो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो इधर का तो चला गया, इधर आ गया एंटी लॉग। अब मुझे बताओ, कभी नेगेटिव टर्म का एंटी लॉग होता है? तो एक चीज ध्यान में रखो, नेगेटिव टर्म का कभी भी एंटी लॉग नहीं होता है, ठीक है। तो आपको इसको घुमा फिरा के पहले पॉजिटिव बनाना है। कैसे पॉजिटिव बनाएंगे देखो, आई विल राइट ऑन -3 माइनस 0.12, इसका ये मतलब है ना, -3.12 कैन बी रिटन एज -3 माइनस 0.12, ये समझा स्टेप? यस और नो, सबको समझा? माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस, अगर इसको ऐड करेंगे तो 3.12, यही आंसर आएगा, बराबर। अब इसमें आप करोगे +1 ऐड और -1, ये याद रखो। क्या किया मैंने, इस टर्म को ब्रेक कर दिया। आगे ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है जो आपको सॉल्व करने हैं, मैं नहीं सिखाऊंगी, इसलिए अभी ध्यान से सुनो। -3.12 इसको ब्रेक कर दिया, इट विल फॉर्म -3 माइनस 0.12 +1 ऐड करने का, -1 ऐड करने का। अब क्या करने का पता है, ये माइनस वाला और ये माइनस वाला साथ में लिखने का, तो क्या हो जाएगा -3 -1, फिर ये +1 माइनस 0.12, समझा कैसे रीअरेंज किया। अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू -4 प्लस 1 में से 0.12 माइनस करो, 1.0 0.12, ठीक है। आता है ना ये सब्ट्रैक्शन के, नहीं आता है? दिस इज 9, दिस इज 10, तो ये हो गया 8 कितना हो गया 0.88, तो मेरा आंसर क्या हुआ इधर पे 0.88। ये समझा स्टेप व्हाट आई डिड, इसको ब्रेक किया, इट विल बिकम -3 माइनस 0.12 +1 -1 ऐड करने का, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ये माइनस वाला ये माइनस के साथ लेके जाने का हमेशा, और 1 जाएगा इसके साथ, तो भी नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया सब्ट्रैक्ट करके। अब मुझे बताओ -4 प्लस 0.88 कितना हो जाएगा, इट विल बी -4.88, बराबर है। अब हम एंटीलॉग निकाल सकते हैं, इसका मतलब हो गया बार 4.88। नाउ आई कैन टेक आउट द एंटीलॉग ऑफ बार 4.88। इसका मतलब होता है कि एंटीलॉग ऑफ 0.88 इंटू 10⁻⁴, समझा। मतलब ये जो बार में टर्म है दैट मीन्स इट इज 10⁻⁴। सपोज यहाँ पे बार 2 होता तो मैं क्या लिखती 10⁻⁴, और इसको 0.88 बना देने का। और वैसे भी एंटीलॉग के लिए हम लोग कौन सा टर्म देखते हैं, आगे वाला टर्म देखते हैं। अब 88 में 0 देखो, क्या आंसर है बताओ। 7586. ओके 7586, 0 + 1 1, मतलब इधर पे पॉइंट आएगा, इंटू 10⁻⁴ मोलार, ये आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। समझा कैसे किया, वापस से बताती हूँ, देखो ध्यान दो, यहाँ तक तो समझ में आ गया। मिस वो हम टेकिंग लोग ने एंटीलॉग, नंबर चेंज क्यों किया? किसका नंबर बेटा, मिस ये ये नंबर? 3 पॉइंट। हाँ मिस। हाँ, क्यों चेंज किया, क्योंकि अगर आप लॉग बुक देखोगे तो लॉग बुक में कभी भी नेगेटिव टर्म का एंटीलॉग नहीं रहता है, ठीक है। एंटीलॉग यू कैन टेक आउट ओनली फॉर द पॉजिटिव टर्म, तो इसको हम लोग को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। हाउ विल यू मेक इट पॉजिटिव, जस्ट ब्रेक दिस, ऐड +1 -1, -1 वाला माइनस के साथ लेके जाओ, +1 वाला इसके साथ लेके जाओ, तो अब ये क्या बन गया -4 पॉइंट, ये देखो क्या बन गया -4.88। और एंटीलॉग के लिए हम लोग कौन सा टर्म देखते हैं, ये टर्म देखते हैं ना, तो ये क्या बन गया बार 4.88। तो एंटीलॉग ऑफ बार 4.88 मतलब 0.88, एंड दिस टर्म विल गो एज 10⁻⁴, समझा। फिर इसका एंटीलॉग देखने का 7.586 इंटू 10⁻⁴ मोलार। समझा कि नहीं समझा, पहले इतना बोलो अच्छे से। मैम तो Very पीछे good. भी मिस तो मैम बोलो ना। मैम तो पीछे भी -3.12 था, तो उधर भी 3 बार .12 ले सकते थे ना हाँ कौन सा मिस वो वही। 3.12, मैम? वो ये वाला, H3 का कौन, ये हाँ हाँ ये नहीं नीचे देखो, एंटीलॉग के नहीं टाइम नहीं पे। नहीं, ये जो टर्म है ना,
ये -3.12 ये पूरे के लिए है। तो अगर आप एंटी लॉग निकालोगे तो माइनस ये ऐसे नहीं ले सकते क्योंकि ये पूरा टर्म है। तो मुझे सिर्फ ये टर्म को पॉजिटिव बनाना है। देखो -3 -0.12 है ना, समझा? तो ये माइनस रहेगा तो चलेगा, लेकिन ये टर्म भी तो माइनस हो गया ना बच्चों। ये टर्म तो मुझे पॉजिटिव चाहिए। तो इस टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने +1 ऐड किया, -1 ऐड किया। तो जब +1 में से माइनस जाएगा तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा ना ये नंबर। आ रही है बात समझ में मैंने क्या बोला? सी, इफ आई एम राइटिंग -7.86, इसका मतलब क्या है? -7 -0.86, तो -7 रहेगा तो दैट इज फाइन। बट उसके साथ साथ ये 0.86 भी तो माइनस में है ना, समझा? तो हाउ विल यू कैलकुलेट द एंटीलॉग ऑफ -0.86? पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? +1 -1 ऐड करेंगे। -1 इसके साथ जाएगा, बन जाएगा -8, और +1 में से इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा ना, क्योंकि 1 बड़ा है कि -0.86 बड़ा है? ऑफ कोर्स 1 बड़ा है। तो 1 में से ये जाएगा तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो जब ये टर्म, पॉइंट के बाद वाला टर्म पॉजिटिव रहना चाहिए एंटीलॉग में। यहाँ पर क्या हो रहा है? पॉइंट के पहले वाला भी नेगेटिव है, पॉइंट के बाद वाला भी नेगेटिव है। अभी समझा? हाँ। सबको समझा? यश, हाँ मिस। क्लियर? हाँ ठीक है, चलो लिख लो। ये लिखा है क्या कि बाकी है लिखने का? लिख लो, राइट इट। और भी समय, डोंट वरी। ये समझा कैसे हुआ? क्योंकि मेरे को -3 रहेगा तो इट इज फाइन। तुम लोग का डाउट एकदम परफेक्ट है कि वी कैन राइट इट ओवर देयर इनटू 10⁻³ बट -0.12 हो गया ना वो। -0.12 का कैसे एंटीलॉग निकालेंगे? नॉट पॉसिबल। तो उसको चेंज करने के लिए +1 -1 करके फिर उसका एंटीलॉग निकालते हैं। समझा? लिखो फटाफट से, ये हो जाएगा तो बोलो, फिर मैं पेज टर्न करती हूँ। एकदम आराम से ध्यान से समझ के करो, कोई घाई नहीं है। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, JEE में, नीट में, योर 12th स्टैंडर्ड, एवरीवेयर दे विल आस्क यू सो मेनी क्वेश्चंस ऑन दिस। ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव कंप्लीटेड। टर्न करूँ क्या बच्चों पेज? ओके, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट। Okay, I hope you all have understood this. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। रेडी? Ready? Okay, write down. A weak monobasic acid, a weak monobasic acid is, a weak monobasic acid is 0.04% dissociated in, a weak monobasic acid is 0.04% dissociated in
0.025 molar solution. 0.025 molar solution. What is the pH of the solution? What is the pH of the solution? ठीक है? First thing, we need to calculate pH. pH का formula क्या है? Negative log 2 the base 10 concentration of हाइड्रोनियम आयन. अब मुझे हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन तो पता नहीं है, करेक्ट? आपको याद होगा पहले किया था, हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू सी. याद आ रहा है? अब मुझे इसमें अल्फा भी पता नहीं है. कैन आई कैलकुलेट अल्फा? ये क्या दिया हुआ है? 0.4%. मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू 0.04 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अभी ध्यान से देखना. 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू प्लस 2. तो क्या हो गया? 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 4. ये समझा स्टेप? आई गॉट अल्फा. अभी अल्फा को इधर सब्स्टिट्यूट करो, क्या हो जाएगा? ये concentration of H3O plus is equals to alpha into C. Alpha is 4 into 10 raised to minus 4 into 0. कितना था? ये रहा 0.025. ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करने का? सब पॉइंट शिफ्ट कर देने का. 4 into 10 raised to minus 4 into 25 into 10 raised to minus 3. 25 4 से कितना होता है? 100 into 10 raised to minus 4 10 raised to minus 3. इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया 10 raised to 2 into 10 raised to minus 4 into 10 raised to minus 3. तो 7 में से 2 गया 5, मतलब 10 raised to minus 5 मोलार. ये क्या आ गया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3 प्लस. ये समझा सबको इतना स्टेप? बोलो जल्दी. यस मैम. हाँ, अभी अपने को क्या चाहिए? पीएच चाहिए ना. तो पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग 2 द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन. सो नेगेटिव लॉग 2 द बेस 10 कितना है? 10 रेज टू माइनस 5. बताओ ओरली कितना आंसर आएगा? लॉग ऑफ 10 रेज टू माइनस 5 कितना रहता है? माइनस 5. माइनस माइनस प्लस तो आंसर आएगा 5. करेक्ट, वेरी गुड. समझा? इजी था सम एकदम. 3 मार्क्स. दिस कैन बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स. अंडरस्टूड? एकदम स्टेप बाय स्टेप जाने का. ये पूछा है, चलो ठीक है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3 प्लस नहीं दिया. कुछ बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं पता है? इसको लिख देते हैं कॉन्सेंट्रेशन. नहीं, ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है? ये सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है, हाइड्रोनियम आयन का नहीं है. तो पहले हाइड्रोनियम आयन का निकालेंगे, बट अल्फा नहीं पता तो अल्फा निकालेंगे पहले. अल्फा को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. हो गया. समझा? अंडरस्टूड? लिख लो चलो फटाफट से. write it and then give me done in the chat box. ठीक है, if you are done with the writing part also. आपके टेक्स्ट बुक में बहुत कम न्यूमेरिकल्स दिए हुए चैप्टर के पीछे, बट बहुत आते हैं. अगर तुम लोग लास्ट ईयर की सब बुक्स उठा के देखोगे ना, एक एक चैप्टर में 30-35 न्यूमेरिकल्स है. अभी तुम लोग को बहुत कम कर दिया, बट इट डजंट मीन कि दे आर नॉट गोइंग टू आस्क. दे विल आस्क यू सो मेनी क्वेश्चंस, ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स. आराम से समझ के करो. कोई भी स्टेप ऐसा हो जो नहीं समझा वो पूछ सकते. समझा कैसे किया? 25 1 2 3 10 रेज टू माइनस 3. हाँ ओके कन्हैया, गुड. तो ये क्या हो जाएगा? 10 रेज टू 2, फिर 7 माइनस 2 माइनस 5. ओके ठीक है. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव कंप्लीटेड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं क्या बच्चों? बोला क्या? अच्छा, अगर इसके साथ पीओएच भी पूछा रहता तो, पीओएच भी पूछा रहता तो क्या करते? pH minus नहीं pH plus 14 minus pH is equal to 14. हाँ 14 माइनस 5 कर देते ना डायरेक्टली. समझा? हाँ, यस तो अपने को क्या मिल जाता? पीओएच हो जाता. समझा? ऐसे एकदम सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का.
चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं तुम लोग को हेल्प तो करूंगी बट कैलकुलेशन तुम लोग को करना पड़ेगा बाय यूजिंग लॉग। रेडी? चलो पेज टर्न करती हूँ, 2 मिनट ठहरो, 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी एवरीवन? Yes. Write down pH of monoacidic weak base. pH of monoacidic weak base is कितना दिया हुआ है? 11.2. pH of monoacidic weak base is 11.2. Full stop. Calculate its percent dissociation. Calculate its percent dissociation in 0.02 molar solution. मतलब अपने को क्या निकालने का है? अल्फा। ठीक है, अपने को क्या दिया हुआ है? pH, करेक्ट? pH इज इक्वल्स टू 11.2, लेकिन बोला क्या है? देखो क्वेश्चन पढ़ो, मोनो एसिडिक बेस है वो, है ना? तो बेस के लिए pH लेके चलेगा क्या? नहीं चलेगा। व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट? pOH। आ रही है बात समझ में? बिकॉज क्वेश्चन इज इट इज pH ऑफ मोनो एसिडिक वीक बेस, तो क्या लिखेंगे इधर? pOH निकालेंगे। pOH इज इक्वल्स टू 14 माइनस 11.2, कितना आएगा? 14 11.2 0, तो हो गया 2.8 आएगा ना? इट इज 2.8। प्लीज म्यूट योर सेल्फ सिद्धेश, जब भी काम रहेगा तभी ओपन करो, ठीक है? ये हो गया pOH। नाउ कैन आई कैलकुलेट द concentration of OH minus ions? Yes, I will write down pOH is equals to negative log to the base 10 concentration of OH minus ions। ठीक है, अब देखो pOH का वैल्यू कितना है? 2.8 is equals to negative log concentration of OH minus ions। चलो आएगा अभी करने के लिए, पहले जैसा करने का। क्या लिखूं इधर? negative log to the base 10 concentration of OH minus is equals to 2.8। अभी माइनस को ये साइड पे लेके आओ, तो माइनस 2.8 ये हो जाएगा log to the base 10 concentration of OH minus। समझ रहे हैं? अभी क्या करेंगे? एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड्स। एंटी तो इधर क्या आ जाएगा? हाँ, इधर क्या आ जाएगा? एंटी लॉग ऑफ माइनस 2.8। चलो कैसे करेंगे इसको ब्रेक, तुम लोग ही बताओ। -2 माइनस 0.8, 0.8 प्लस 1 फिर क्या माइनस करूँ? वेरी गुड, +1 -1। -1 को किसके साथ भेजने का? -2 के साथ। Minus. हाँ करेक्ट। और 1 को किसके साथ भेजने का? 0.8 के साथ। तो कितना हो जाएगा ये? -3, बराबर है ना? प्लस 1 में से 0.8 गया तो 0.2 बचता है ना? तो कितना हो गया? बार 3.02। समझा? अब एंटीलॉग ले सकते हैं। एंटीलॉग ऑफ 0. वो मैंने 0.2 क्यों लिखा? नहीं 0.2 इंटू 10⁻⁻3। तो पहले इसका ये निकालो, एंटीलॉग निकालो। समझा क्या ये कैसे किया? हेलो, हाँ सबको समझा? देखो यहाँ से ब्रेक कर दिया वापस से। समझा? अभी देखो कैसे था, -2.8 ना, तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। इसका नेगेटिव कैसे निकालेंगे? इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। अब इसका एंटीलॉग लेके इतना आंसर बोलो कितना आया। अपने ऊपर एल लिखा है कि एल मतलब एंटीलॉग है ना, एंटीलॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो एंटीलॉग लिखा है मैंने -2.8। समझा?
हाँ, लॉग इधर था ऋषि, यू आर टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो यहाँ से एंटी लॉग और लॉग निकल गया, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ एच माइनस अभी, दैट इज इक्वल्स टू ए एल। समझा? समझा क्या ऋषि? चलो इसका आंसर बोलो फटाफट, सॉल्व करो। कुछ लोगों को सही आंसर भी मिल गया, करेक्ट। इट इज हाउ मच, 1.58, बराबर है ना? हाँ 1.5848 इंटू 10⁻³ मैंने भी सब सॉल्व किया है मेरे बुक में, ये देखो दिखाती हूँ मेरा बुक। देखो ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ तुम लोग को बोलती, सी आई हैव आल्सो सॉल्व्ड। ठीक है, चलो इतना, ये अभी क्या आ गया अपना, मोल पर डीएम क्यूब। हाँ, अभी तक हम लोग को अल्फा नहीं मिला है, अभी तक हम लोग को ओ एच माइनस मिला है। अभी याद है हाइड्रोनियम का लिखते थे अल्फा इंटू सी, तो ओ एच माइनस का भी लिख सकते हैं ना, अल्फा इंटू सी। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू ओ एच माइनस डिवाइडेड बाई सी। ओ एच कितना, 1.5848 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया था, 0.02। चलो अभी बहुत इजी है, करो और आंसर बोलो। ये पॉइंट को शिफ्ट करो, 10⁻² बनाओ, -2 को ऊपर लेके जाके +1 हो जाएगा और 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। समझा? क्लियर एवरीबॉडी? यस मैम। हाँ ठीक है। नहीं समझेगा तो पूछो आराम मिस वो से। एंटीलॉग का 1.55 है मतलब इस बुक में। हाँ चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं। 1.585 ना, हाँ तो अपने को क्या आया, 1.5848 आया, तो अप्रोक्सीमेटली 50 हुआ ना बच्चा। हम लोगों ने 3 टर्म लिया, हम लोगों ने 4 टर्म लिया। आया क्या समझ में? ये देख क्या लिखा है, 1.585 ही लिखा है ना, हम लोगों ने क्या लिखा है, 48 लिखा है, मतलब 50 के आसपास ही हुआ ना। हम लोगों ने ज्यादा एग्जैक्ट आंसर निकाला, उन लोगों ने कैलसी पे निकाला है। अभी ये सब आपके ना इसके एग्जाम्पल्स हैं, टेक्स्ट बुक के ही है, सॉल्व एग्जाम्पल्स। इसके बाद में तुम लोगों के टेक्स्ट के पीछे के भी 1-2 ले लूंगी। बराबर, करेक्ट आंसर। सो आंसर विल बी, बराबर है, 0.07924, करेक्ट। सबको आया क्या देखो? वेरी गुड प्रगति, वेरी गुड हिमांगी, करेक्ट आंसर है। यस सृष्टि, परफेक्ट। और अगर ऐसे नहीं 7 पॉइंट ऐसे करके लिखा तो भी चलेगा, इंटू 10⁻³ वैसे रखेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। आई होप इतना समझा सबको अच्छे से। पीएच पीओएच वाला अभी हाइड्रोलिसिस पीके वाला थोड़ी देर के बाद लेंगे, वो टेक्स्ट के पीछे 2 क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग, नॉट गेटिंग बोर्ड। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अभी टेक्स्ट के पीछे वाला है एकदम लास्ट में, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 6th वन, टेक्स्ट बुक के एकदम पीछे टेक्सचुअल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 6th वन लिखो। एसिटिक एसिड इज, बोलो ना, एसिटिक एसिड इज 5% ionized, 5% ionized in its
डेसीमोलार, देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया, डेसीमोलार सॉल्यूशन, in its decimolar solution, full stop. Calculate dissociation constant of acid. Calculate dissociation constant of acid. चलो Ka निकालने का है, फॉर्मूला क्या है, अल्फा स्क्वायर इंटू सी, के मतलब अल्फा स्क्वायर इंटू सी, ये फॉर्मूला है कि नहीं पहले इतना बोलो, है ना। बट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट अल्फा ऑल्सो एंड सी ऑल्सो। तो अल्फा देखो कितना दिया हुआ है 5%, तो हम लोग क्या करते हैं 5/100 करेंगे, मतलब 5/10⁻², मतलब 5 × 10⁻⁻², अल्फा का मैटर सॉल्व हो गया, क्लियर। अब क्या बोला, डेसीमोलार सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन डेसीमोलार मतलब क्या होता है पता है आपको, 1/10, इसको बोलते हैं डेसीमोलार सोल्यूशन। डेसीमोलार का मतलब होता है 1/10। तो अब ये ऊपर लेके जाओ, क्या बन गया 10⁻⁻1 आ गया ना आंसर। अभी सॉल्व करो, एकदम सिंपल था। अल्फा स्क्वायर इंटू सी, अल्फा इज 5 × 10⁻², सी है 10⁻⁻1, 5×5 = 25, इसको सॉरी स्क्वायर लिखना था इधर, 5×5 = 20, 2×2 = -4, मतलब -5। कुछ गलत किया है मैंने? मिस वो C 1/10 कैसे आया? ये डेसीमोलार बोला है ना, डेसी मीन्स 10, 1/10 रहता है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन उन लोगों ने डायरेक्टली नहीं दिया है कि इट इज 10⁻⁻1 और 0.1 मोलार, उन लोगों ने इसको कैसे बोला, इट इज डेसीमोलार। डेसीमोलार में एक डेसिमल का डिफरेंस रहता है जीरो के साथ, इट इज 1/10, ये ध्यान में रखो, समझा। ये मेरा आंसर आ भी गया के ए का, आया समझ में सबको अच्छे से? Yes. कुछ नहीं था सम में, देखो एकदम सिंपल सम था। अभी नेक्स्ट सम में जो तुम लोग को दे रही हूँ, तुम लोग खुद से सॉल्व करेंगे अभी मेरे सामने। ये कैसा सम है पता है, अभी थोड़ी देर पहले किया था ना हम लोगों ने, वैसा सम है अभी इसके पहले जो किया था। रेडी? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, आराम से समझ के ध्यान से करो, यू कैन टेक योर टाइम, आई विल वेट फॉर एवरीवन, डोंट वरी। रेडी? ये टेक्स्ट के पीछे वाला था, अभी जो नेक्स्ट वाला है ना वो भी टेक्स्ट के पीछे वाला है, वो है क्वेश्चन क्रमांक 9। बोलू क्या क्वेश्चन? हेलो, हाँ ओके। यस मिस। हाँ, pH of weak monobasic acid is, pH of weak monobasic acid is 3.2, 3.2 in its 3.2 in its 0.02 molar solution, in its 0.02 molar solution, full stop. Calculate its dissociation constant. Calculate its dissociation constant मतलब Ka। फॉर्मूला बता देती हूँ, अल्फा स्क्वायर इंटू सी। चलो शुरू हो जाओ, काफी लंबा समय है, आप लोग को पहले हिंट देती हूँ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस निकालो, H+ आयंस निकालेंगे, आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस निकालो, इसको यूज करके अल्फा निकालो, अल्फा को यूज करके ये निकालो। हिंट दे दिया मैंने, ठीक है। हाउ मच टाइम यू नीड टू सॉल्व दिस? 5 मिनट्स। कितना टाइम चाहिए बच्चों? पीएच का H+ आयंस निकाल सकते हैं ना, अभी आएगा कि नहीं?
हाँ या ना तो बोलो रे बाबा। हाँ हाँ मिस। ठीक है। हाँ अभी 9:17 हो रहा है। 9:25 को, चलो तुम लोग को 7 मिनट्स दिया, 9:25 को वी विल डिस्कस। सॉल्व करो, मैंने हिंट भी दे दिया। ये फॉर्मूला है, पहले एच प्लस निकालो, फिर एच प्लस को यूज करके अल्फा निकालो, और इधर सब्स्टिट्यूट करके आंसर बताओ। एक एक करके दिखाओ, पहले एच प्लस का मुझे आंसर बताना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं म्यूट करती हूँ, मुझे बोलो तुम लोग, तो मैं खुद को अनम्यूट कर दूंगी, ठीक है। अल्फा 165? नहीं, गलत है। इतने फटाक से अल्फा कैसे आ गया सृष्टि? पहले एच प्लस निकालो, एच प्लस के बिना अल्फा आ ही नहीं सकता है, पहले एच प्लस निकालो। यस, किसने लिखा ये आंसर? कन्हैया। परफेक्ट। एच प्लस का बिल्कुल सही आंसर मिला, गुड। बताओ मत किसी को भी, ठीक है। लेट एवरीबॉडी सॉल्व। नहीं आएगा तो आई एम देयर, बट सॉल्व करो। एच प्लस के बाद अल्फा का भी हिंट दे दूं क्या? एच प्लस इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी। तो एच प्लस निकालने के बाद सी पता है, अल्फा निकाल सकते हो, और अल्फा से ये निकाल सकते हो। चलो सब बता दिया मैंने, अभी खाली तुम लोग को आंसर निकालने का है। टेक योर टाइम, डू इट नाइसली, कोई बात नहीं। आज अगर इतना भी हुआ तो भी अपना काफी हो गया, मतलब काफी। कितने सम हो गए? 5 तो हुए क्या? 5 सम हुए? मिस 6 सम है, ये 6 है। हाँ हाँ बराबर, करेक्ट। ठीक है। टुमारो मॉर्निंग अगेन यू हैव 10:30 to 12। ठीक है, फिर मैं आगे का टॉपिक सिखाऊंगी और उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स ले लूंगी। और 3-4 लेक्चर जाएगा अपने को, संडे तक हो जाएगा ये चैप्टर। रुको, क्या लिखा है? यस कशिश, परफेक्ट आंसर, बराबर है। I want answers from everyone, हाँ? Right तो right, wrong तो wrong, it's fine. देखो ऐसे टाइप के सम जो डबल यूनिट में 4 मार्क्स के लिए पूछ लेंगे घुमा फिरा के, कितना इजी है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, रुको हाँ चेक करती हूँ, 1 मिनट। हाँ बराबर है कन्हैया, करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, परफेक्ट।
बट ये तुमने इस पे तो नहीं किया ना, लॉग बुक से किया है ना, कैलकुलेटर पे नहीं किया ना, क्योंकि कैलकुलेटर पे ऐसा आंसर आता है, लॉग बुक पे आता है। ये से मांगी, करेक्ट, करेक्ट है वैल्यू h प्लस का। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? चलो, अनिरुद्ध, दिवेश, साक्षी, अमीशा, हेली, वेरी फ्यू पीपल आर रिप्लाइंग, तन्वी, शिवम, ओनली 20 पीपल टुडे, व्हाई? हाँ यश, मुझे समझा समझा। हाँ मुझे वो सरनेम से समझा यश, डोंट वरी। हाँ तो सॉरी, मैंने अपनी मम्मी का नाम लिया, सॉरी सॉरी, मेरे दिमाग से निकल गया वो। बराबर है कशिश, परफेक्ट, वेरी गुड। कशिश ने एकदम एग्जैक्ट आंसर निकाला है। ओके यश, चलो सॉल्व करो जल्दी। आज इतना सम करके बस करते हैं ना, थक गए तुम लोग अभी। वैसे भी के निकालने को भी टाइम जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू सी ए, तो अल्फा को स्क्वायर करोगे पहले, लॉग से आता है ना, 2 इंटू लॉग, ऐसे करके करना। चलो मैं आंसर बताती हूँ, एच प्लस का आंसर आएगा सबसे पहले 6.3, मेरे को 95 आया, तुम लोग को कितना है? 10 ना, कितना आया मेरे को? 1 6.310। हाँ मेरे को 095 आया, ठीक है, इंटू 10⁻⁴। फिर अल्फा का वैल्यू आ गया 3.155 इंटू 10⁻²। एक नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो डोंट वरी। अब आप निकालोगे के ए, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी। देखो क्या करो पता है, 3.155 इंटू 10⁻² का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.02। हाँ बराबर है। नहीं नहीं प्रगति, इधर पॉइंट में गड़बड़ हो गया, चेक कर लो एक बार, आंसर बराबर है, खाली पॉइंट का गड़बड़ है। तो अभी ये क्या हो जाएगा पता है, 3.155 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁴ इंटू 2 इंटू 10⁻²। अभी ये कैसे निकालेंगे? ऐसे करो, 2 इंटू लॉग ऑफ 3.155, समझा, प्लस लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻�6, समझा क्या? ऐसे करो, जल्दी हो जाएगा। अंडरस्टूड व्हाट आई डिड? इसको 2 बार लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, उससे अच्छा 2 इंटू लॉग ऑफ दिस, तो पहले इसका लॉग निकालो, 2 से मल्टीप्लाई करो, इसका लॉग निकालो, सबको ऐड करो, बाद में एंटी लॉग निकालो, आंसर आ जाएगा। चलो फटाफट करो। अपना अभी कौन से पेज नंबर तक हो गया वो मैं तुम लोग को बता के रखती हूँ, पीके वाला का सम मैं कल ले लेती हूँ, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। अपना हो गया है पेज नंबर 57 तक, मतलब आधा पेज नंबर हो गया 57। कल आधा ले लेंगे और उसके ऊपर सम सॉल्व कर लेंगे। कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो प्लीज पूछो, कोई भी स्टेप। कितना टाइम ले रहे हो देखो तुम लोग, हड़ू हड़ू करता है।
चलो फटाफट आंसर बताओ। लॉग आता है ना, 31 में 5 को देखो, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, और 20 में 0 को देखो, 2 का लॉग, तो 0.3010 आएगा। हाँ बराबर है। किसका आंसर है ये? किसने दिया आंसर ये? एक मिनट। करेक्ट कशिश, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड गुड। अभी तक सिर्फ एक ही बच्ची ने सॉल्व किया है। करेक्ट कन्हैया। खुशी रॉन्ग है आंसर, चेक करो किधर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में। एकदम सिली मिस्टेक हुआ है तुम्हारा। प्रगति गलत है आंसर बेटा, चेक करो। नहीं यश, आंसर थोड़ा सा गड़बड़ है, चेक करो। मिस आंसर के नजदीक है। नहीं रे बच्चा, बहुत दूर है तू। रुको मैं आंसर बताती हूँ, तुम लोग सॉल्व करके कल लेके आओ, हाँ ठीक है? कशिश आंसर लिख जरा सबको इसमें, मेरा बुक मैंने बंद कर दिया। एवरीवन करके लिख आंसर। आंसर है 1.991 इंटू 10⁻⁻5। 1.991 इंटू 10⁻⁻, हाँ अभी बराबर आया प्रगति। ये आंसर आना चाहिए सबका। कुछ लोगों को ये भी आ सकता है, मुझे ऐसा आया है, मुझे 19.89 इंटू 10⁻⁻6 है, मतलब वही मीनिंग हो गया ना, एक पॉइंट शिफ्ट किया सिर्फ। चलो, I hope you all understood today's lecture. Tomorrow again we will meet 10:30 sharp. Okay? कुछ डाउट रहेगा तो कल भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Till that time, take care, be safe and keep studying. Okay? चलो, welcome. Bye bye. Bye bye.